Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss excellent general financial rules. It is part 1 related to the procurement of goods and services. It is the latest one up to February 2024. You can get some modification. Today, I will discuss Rule 142 to 150. And in this part also I will discuss 10 MCQ questions. This part would be interesting one. So you know that GFR is the very important part and related to the procurement of goods and services. Questions are coming. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that other people, they can get benefit of my videos and it will be useful for them for different government exams. So if you want to contact with me, then my WhatsApp number, it is given 8327782034. Telegram channel link is there, t.me/BAPI2034. You can join my Telegram channel and you know about my latest videos. So now I am going to discuss Rule 142 to 150 and 10 MCQs also. First one, you see Rule 142. This chapter contains the general rules applicable to all ministries or departments regarding procurement of goods required for use in the public service. So we need goods in government departments or in government entities to fulfill the needs of the public, provide good facilities to the public, strengthen the public infrastructure. So in this matter, actually general rules are there, general rules related to the procurement of goods and services by the various government departments and government procuring entities. It is given in Rule 142. It is very important one. Now in question also particular rule is coming. So it is very important one. Different rules, different fundamental principles and different criteria and different parameters are there to procure goods and services by the government departments and government procuring entities, and this rule related to 142. Just related to the chapter contain procurement of goods and services, and some general rules are there. Actually it is shown by the Rule 142, right? Next one, Rule 143. It is very important one. Definition of goods. Question is coming. It is very important one. Definition of goods. Actually, one thing you remember, everything. Goods means everything is included in goods, but periodicals, publications and procurement of books for library, it is not included. So related to the library, you remember, procurement of books for library, any periodicals, any publications for library, etc. These are not included in goods. Okay. So Rule 143, very important one. General Financial Rule 143, basically related to the definition of goods. It is given all articles. You see all articles: material, commodity, livestock, furniture, fixtures, raw material, spares, instruments, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft, ship, medicines, railway rolling stock assemblies, sub-assemblies, accessories, a group of machineries, okay, comprising of an integrated production process or such other category of goods. ये सब आ जाता है goods में, ठीक है. Here important one, you see also assemblies, sub-assemblies, different accessories, group of machineries, integrated some production process. Okay, and also you see intangible, it means services like intangible products like software, technology transfer licenses, patents or intellectual properties purchased or otherwise acquired for the use of government. So it means different intangible products means services, चाहे सॉफ्टवेयर, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सर्विस, चाहे लाइसेंस सर्विस, चाहे patents or intellectual property. So these type of things also included. But here it is given, you see in red mark it is given, procurement of books for library,
फिर publications, different publications for library, periodicals for library, these are not included in the definition of goods, and it is defined by the rule 143, right? It is very important one. Other things also includes works and services which are incidental or consequential to the supply of such goods, such as transportation, insurance, installation, commissioning. Okay, you see everything, it is also such as transportation, insurance, installation, commissioning, training, maintenance, everything included in the definition of goods. Okay, rule 143, it is very important one. Rule 143, okay, define the goods in general financial rule. And goods means different type of services, intangible products, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे इंस्टॉलेशन, चाहे कमीशनिंग, चाहे ट्रेनिंग, चाहे मेंटेनेंस, चाहे सॉफ्टवेयर, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, everything is included in the definition of goods. Okay, but excludes books, publications, periodicals, etc. for library. It is given, you see, it is very important one. Okay, it is regularly, okay, in many government exams actually question related to this is coming. It is very important one. Clear? Next one, rule 144, it is very important one. Some fundamental principles are there for procuring goods by the government entities and different departments of the government. Some fundamental principles and also regularly questions are coming related to this. First, you remember rule 144, discuss about the fundamental principles for procurement of goods by the procuring entities and the government departments. So you know that actually the authority who has financial delegation power, this authority can spend money and procuring quality goods, adequate quantity of goods to fulfill and to satisfy the needs of the public. Clear? To providing facilities to the public. So जब procurement किया जाएगा, main thing you remember, efficiency, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंसी मीन्स आपको इंपॉर्टेंस देना है क्वालिटी, उसका स्पेसिफिकेशन है ना, कमोडिटी का आपको चेक करना है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, सेल्स सर्विस की, आफ्टर सेल्स सर्विस की, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी की फार्म. सो ये सब चीज को चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए. जो भी गवर्नमेंट एंटिटी है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोक्योर करना चाहता है, तो एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देना है. एफिशिएंसी मींस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? सो एफिशिएंसी मींस जिस फार्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और जिससे हम गुड प्रोक्योर करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी अच्छा होगा, उसका पास्ट सेल सर्विस अच्छा होगा, और पोस्ट सेल सर्विस, सपोज एक गारंटी वारंटी पीरियड होता है, वो भी एक अच्छा सर्विस देगा. ठीक है? और वो जो गुड्स बेसिकली जो कमोडिटी को डिलीवरी करेगा, टाइमली डिलीवरी करेगा, और प्राइस भी रीजनेबल है. जो भी गुड प्रोक्योर करेंगे प्राइस रीजनेबल है. तो ये सब चीज को हम देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. ओके, इकोनॉमी, रीजनेबल प्राइस. इकोनॉमी मीन्स कैसे? रीजनेबल, कम प्राइस. ठीक है, हम एक रीजनेबल प्राइस, लीस्ट प्राइस को एम्फसाइज करेंगे. इकोनॉमी. ट्रांसपेरेंसी मींस ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी रहेगा. जो भी हम एनालाइज करेंगे, जो लीस्ट प्राइस होगा उससे परचेज किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है परचेज का, जो पैरामीटर्स है, जो गाइडलाइंस है, हम ठीक से फॉलो करेंगे, तो इसमें कोई हमको सस्पेक्ट नहीं करेगा. ओके, और उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, तब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा. उसमें कोई प्राइमरी एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी कमीशन नहीं लेगा, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ठीक है? तो ये तीनों चीज को ध्यान देना है इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट. एंड यहां पर भी और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स. जो भी डिफरेंट सप्लायर से हम गुड प्रोक्योर करेंगे, उनको इक्वली ट्रीट करेंगे. ठीक है? हमारा ट्रीटमेंट में कोई डिस्पैरिटी नहीं होगा, ट्रीटमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कंपटीशन को बेसिकली प्रमोट करेंगे.
सपोज अभी देखिए हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम से परचेज करते हैं, जो भी कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज जेम में नहीं है तब हम टेंडर प्रोसेस को जाते हैं। अभी मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बेसिकली इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू प्रोक्योर बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन जेम। जेम में जो कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज है उससे परचेज करना है। यदि जेम में नहीं है तब हम टेंडर प्रोसेस में जाएंगे। और जो टेंडर प्रोसेस होगा वो कंपटीशन होना चाहिए। हम ऐसा गाइडलाइंस पैरामीटर्स देंगे जिसमें मोर एंड मोर बिडर्स एक्चुअली दे आर रेडी टू एक्चुअली ऑफर द कमोडिटी। तो ऐसा होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो यहां पर और कुछ गाइडलाइंस को हम देखेंगे। ये सब प्रोसीजर है, दिया है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट मस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग एस्टिक्स। डिस्क्रिप्शन क्या है देखिए, बी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनरिक एंड मेजरेबल एंड स्पेसिफाइड टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑब्जेक्टिव, तो किस उद्देश्य से हम गुड को प्रोक्योर करेंगे। जो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी की गवर्नमेंट एंटिटी जो गुड को प्रोक्योर कर रहा है, क्या वो गुड को प्रोक्योर करने से क्या वो जो पब्लिक नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। तो एक सर्टन ऑब्जेक्टिव होता है, सर्टन ऑब्जेक्टिव इज देयर टू प्रोक्योर द सर्टन कमोडिटी, टू प्रोक्योर द group of commodities, and main objective behind this is to fulfill the needs of the public, provide facilities to the public. Functional, generic क्या है, एक authentic commodity, authorized commodity, और जो बेसिकली सर्टिफाइड कमोडिटी को हम परचेज करेंगे जो कमोडिटी हार्मफुल नहीं होगा। जेनेरिक मींस ड्रग, जो केस में मेडिसिन केस में जो जेनेरिक मेडिसिन होता है आप जानते हो, जो हार्मफुल नहीं होगा। Those type of medicines are not harmful for the people. Those type of medicines would not adversely affect the health of the public. तो वही जेनेरिक ऑथेंटिक है कि सर्टिफाइड है कि ऑथराइज्ड है प्रोडक्ट हम प्रोक्योर करेंगे। और मेजरेबल, एडिक्वेट क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी हम परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी से हमारा एक साइड में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा और कैरिंग कॉस्ट भी होगा, क्योंकि एक्सेस होने से हम उसको प्रिजर्व करेंगे और उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट चला जाएगा। तो हम मेजर करेंगे कि कितना एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ओके, जो हमारा हम सही तरीके से पब्लिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे। टेक्निकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्निकल गुड्स उसका टेक्निकल एस्पेक्ट को देखना है, ठीक है, तो उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखना है। और एक है क्वालिटी, गुड का क्वालिटी होना चाहिए। ओके, जब गवर्नमेंट एंटिटी डिफरेंट गुड्स को प्रोक्योर करता है उसका क्वालिटी मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे अच्छा क्वालिटी होने से क्या होगा, उसको प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम्स यूज किया जाएगा, पेरिनियल ऑफ टाइम्स यूज किया जाएगा। और एक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है, उसका परफॉर्मेंस, जो भी गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे उसका परफॉर्मेंस क्या होगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं, कोई ऐसा कुछ चीज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका मेन परफॉर्मेंस है कि कोई सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसमें जो गुड्स यूज हो रहा है, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या है, जब हम टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं होगा कि इस ट्रेडमार्क का गुड हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, कि इस ट्रेड नेम का गुड को हम प्रोक्योर करेंगे, कि इसी ब्रांड का गुड को प्रोक्योर करेंगे। ऐसा टेंडर पेपर में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई ब्रांड नेम की, ट्रेड मार्क शुड नॉट बी मेंशन्ड इन द बेसिकली टेंडर पेपर। तो भाई नॉट इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड। हम कुछ स्पेसिफिकेशंस दे देंगे, गाइडलाइंस दे देंगे, मगर कोई इट मींस इन बेसिकली बिडिंग पेपर इट शुड नॉट बी मेंशन्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, पर्टिकुलर ब्रांड की, पर्टिकुलर ट्रेड नेम कमोडिटी want to purchase by the procuring entity, purchase by the government entity, ठीक है। तो ऐसा कुछ नॉट इंडिकेट रिक्वायरमेंट, ये बहुत बार आता है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पता चल गया, जब हम टेंडर पेपर इशू करेंगे, जो गाइडलाइंस हम इशू करेंगे, उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक ये मेंशन हम नहीं करेंगे कि इस ब्रांड का कमोडिटी हमको चाहिए कि इस ट्रेडमार्क का कमोडिटी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पेसिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टाइप एटसेट्रा, आज ऑल्सो क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड should be clearly spelled out keeping in view the specific needs of the procuring organization। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकेशंस हम मेंशन करेंगे कि इस तरीके का क्वालिटी गुड हमको चाहिए,
कि इस टाइप का चाहिए और इतना क्वांटिटी का चाहिए, so should be clearly spelled out in tender paper by the procuring organization. So there is no compromise on quality, okay, and how much quantity of commodity should be procured, right? So it should be clearly spelled out. वो भी जो टेंडर पेपर में क्लियरली मेंशन होगा कि दैट टाइप ऑफ क्वालिटी वी नीड, कि सपोज दैट मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी वी नीड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पब्लिक, तो ये सब मेंशन होगा. द स्पेसिफिकेशंस सो वर्कड आउट should meet the basic needs of the organization without including ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये superfluous and non-essential features which may result in unwarranted expenditure. तो मेन है क्वांटिटी. सुपरफ्लूअस एंड नॉन एसेंशियल फीचर्स, सपोज आप जेम से खरीद रहे हो, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस को देखना है, सपोज कुछ स्पेसिफिकेशंस आप ऐड कर देने से प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो इसके वजह से जो एक्चुअली हमारा ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके का स्पेसिफिकेशन चाहिए उसको एम्फसाइज करना है, अननेसेसरली कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस को हम ऐड कर देंगे तो इसके वजह से हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा. जो भी स्पेसिफिकेशंस एक्चुअली नीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि ये गुड में ये होना चाहिए, फैसिलिटीज होना चाहिए, तो वो फैसिलिटीज को हम डिटेक्ट करेंगे. यदि अननेसेसरली कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस की कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी को हम ऐड करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं, तो उसमें हमारा अनवांटेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. Where applicable, the technical specifications shall to the extent practicable be based on the national technical regulations or recognized national standards or building codes, wherever such standards exist, and in their absence be based on the relevant international standards. In case of government, अच्छा ये चीज में क्या है, जब कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होता है एक नेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाएगा. जब कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कोई टेक्निकल कमोडिटी को हम प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसका एक नेशनल टेक्निकल रेगुलेशंस और एक नेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे. जैसे कुछ बिल्डिंग कोड्स है, ठीक है, जब हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एक कोड्स है कि किस तरीका का सपोज हम मटेरियल्स यूज करेंगे तो जो होगा वो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ रहेगा और प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम्स इसको यूज किया जाएगा और उसमें कुछ क्रैक नहीं आएगा, जैसे ये सब है. तो मेनली टेक्निकल मैटर में नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है जो नेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेशन से, और यदि नहीं है तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे. आप देखा होगा बेसिकली ISI मार्क होता है मैक्सिमम, देखिए इंस्टीट्यूशंस के ISI मार्क होता है, तो इट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है वहां पर जो फैसिलिटीज है. ओके, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट्स अब्रोड, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है अब्रोड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड दे रहा है, उसमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहेगा उसमें वो कंट्री का पर्टिकुलर कंट्री में प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है और उसमें जो स्टैंडर्ड रहेगा, उसी कंट्री में जो स्टैंडर्ड रहेगा जो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट में, उसी को मेंटेन करना है. सपोज अभी हमारा एक प्रोजेक्ट जर्मनी में चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फंड कर रहा है, तो जर्मनी में जो स्टैंडर्ड है, जो उनका जो जर्मनी गवर्नमेंट का जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जाएगा. ठीक है, तो ये सब चीज को थोड़ा ध्यान देना है, ये एक अच्छा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स था. प्रोवाइडेड दैट प्रोक्यूरिंग एंटिटी में फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अडॉप्ट एनी अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, IV केयर शुड आल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो हम कोई एक्सेस क्वांटिटी गुड परचेज नहीं करेंगे. ओके, द गवर्नमेंट एंटिटी शुड नॉट प्रोक्योर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि एक्सेस हो जाएगा तब उसको हम स्टॉक करेंगे. भाई उसको एक इन्वेंटरी स्टॉक होता है, जैसे जो ये इन्वेंटरी स्टॉक इसमें बेसिकली में 3 चीज आता है. इसमें क्या क्या आता है, एक है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, एक है ऑनसोल्ड गुड्स है, ओके, और सेमी फिनिश्ड गुड्स है. ये इन्वेंटरी सेमी फिनिश्ड जो अर्ध निर्माण हुआ है, तो ये सब चीज है. तो इन्वेंटरी स्टॉक मींस वही है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स को हम बेच नहीं पाए उसको स्टॉक करेंगे, और अर्ध निर्माण हुआ है सेमी फिनिश्ड गुड्स. तो इसमें क्या है, यदि हम ज्यादा गुड्स खरीद लेंगे, if excess quantity of goods
वुड बी प्रोक्योर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट एंटिटी, तो उसमें क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर दिया है, यहां पर कैरी इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, प्रिजर्वेशन कॉस्ट लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा आपको याद रखना है। ऑफर शुड बी इनवाइटेड फॉलोइंग ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। जब हम बीड इनवाइट करेंगे, ओके, तो वो फेयर होना चाहिए। जो हम बीड इनवाइट करेंगे, बिडर्स को इनवाइट करेंगे, तो वो बहुत फेयर होना चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, किस तरीके का क्वालिटी ऑफ गुड चाहिए, किस तरीके का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गुड हमको चाहिए। और उसमें हम ये भी मेंशन करेंगे, हम क्रीडेंशियल्स को चेक करेंगे, सेलर्स का जो पास्ट सर्विस है, कि सेलर का जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, कि सेलर्स का जो पोस्ट सर्विस है, वारंटी गारंटी पीरियड, ये सब कुछ चेक करेंगे कि सेलर्स कैसे अदर जो गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उसका क्या लिंक है, ठीक है, क्या पर्टिकुलरली हम जो पर्टिकुलरली फार्म से हम खरीदेंगे, क्या वो जो गुड दे रहा है वो उसका फेवर में पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब चीज को देखेंगे। तो जब हम बीड इनवाइट करेंगे, जो भी गाइडलाइंस हम देंगे, जो भी पैरामीटर्स देंगे, वो बहुत फेयर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एक प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ बीड, द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी should be satisfied that the selected offer adequately meets the requirement in all aspects. तो procuring authority should be satisfied that the selected offer adequately meets the requirement in all aspects. तो हम जो procuring authority है वो satisfy होना चाहिए कि हम जो बेसिकली अल्टीमेटली जो हम कॉन्ट्रैक्ट दिया, कि जो गुड हम प्रोक्योर किया, ठीक है, और जिस तरीके का हम डिटेक्ट किया कि ये जो बिडर है, ये जो गुड ऑफर करेगा, कि जो गुड हमको सेल करेगा वो बहुत अच्छा है, क्वालिटेटिव है, कि वो पोस्ट सर्विस अच्छा देगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी अच्छा है और रीजनेबल प्राइस में दे रहा है, तो ऑल एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे अच्छा है। अनदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखिए, VII, द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शुड सर्टिफाई इटसेल्फ दैट द प्राइस, प्राइस बहुत रीजनेबल होना चाहिए। जब हम अल्टीमेटली बीडर्स तो अप्लाई करेंगे, बीड ओपन होगा, तो बीड ओपन होने के बाद हम बेसिकली क्या चेक करेंगे, स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे। स्पेसिफिकेशंस में उसका क्वालिटी देखेंगे, उसका टेक्निकल कैपेबिलिटी देखेंगे, उसका ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, उसका क्या वारंटी गारंटी कंडीशंस क्या है देखेंगे, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस। प्राइस कम होना चाहिए, प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस ज्यादा होने से क्या है, तो वो एक बेसिकली गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर बर्डन हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। तो हम सभी बिडर्स को एनालाइज करके, जो बिडर एक्चुअली अच्छा स्पेसिफिकेशन कमोडिटी लीस्ट प्राइस में दे रहा है, उससे हमको अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट द कंसर्न प्रोक्योरिंग अथॉरिटी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड होना चाहिए एवरीथिंग, जो भी डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे बीड इनवाइट किया गया, कौन सा डेट में बीड ओपन, बेसिकली बीड को इनवाइट स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो बीडर्स बीडिंग डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके भरकर हमको देंगे, और बीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन जो है उसका लास्ट डेट होगा, कौन सा डेट में बीड ओपन होगा, तो ये पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है, तो सब रिकॉर्ड होगा, डिटेल्स जो भी स्टेजेस है बीडिंग के समय में, पूरा वो प्रिसाइजली रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट शेड्यूल होता है, और पूरा बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन होगा कि ये बीड ओपनिंग डेट है, कि बीड सबमिशन का ये लास्ट डेट है, कि इसी डेट में बीड ओपन होगा और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो ये पूरा, और उसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD जो है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो बीड सिक्योरिटी कहा जाता है, कितना है, और उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना परसेंटेज है, पूरा क्लियरली मेंशन होगा। तो एक बीडिंग साइकिल होता है, एक शेड्यूल होता है, किस डेट में बीड ओपन हुआ, किस डेट में सपोज बेसिकली बीड जो सबमिशन डेट है, और किस डेट में बीड को ओपन किया जाएगा, तो ये पूरा क्लियरली है। तो एक जब हम बीड इनवाइट करेंगे, इनवाइटिंग डेट हम करेंगे, इसी डेट से आप बीडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे, और ये लास्ट डेट है, और इसी डेट में बीड ओपन होगा, और इसी टाइम में इसी प्लेस में एक पर्टिकुलर डेट देंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस देंगे, कि उनका कौन सा रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट रहेगा जो बीड ओपन के समय, और कॉन्ट्रैक्ट के समय, पूरा जो भी साइकिल है वो पूरा क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या है, एक एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान कर देना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, एंड द सेम शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन देयर वेबसाइट। तो हमारा जो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान होगा, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2024-25, अभी मार्च 31 में ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड हो जाएगा। तो ये जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हम एक जो प्रोक्योरमेंट प्लान करेंगे वो बेसिकली इट मस्ट बी इनिशिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। पूरा प्रोक्योरमेंट हम ये प्रोक्योर करेंगे, इस तरीके का गुड्स को प्रोक्योर करेंगे, इस तरीके का सर्विस को प्रोक्योर करेंगे जो हम पब्लिक को फुल्ली सेटिस्फाई कर पाएंगे, कि ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे पब्लिक को। तो हमारा जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द न्यू ईयर आवर प्रोक्योरमेंट प्लान शुड बी कंप्लीटेड, बिकॉज प्लान मीन्स एक्चुअली प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट इन एडवांस टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमको क्या है, प्रायर मैनर हमको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो अभी हम प्रोक्योरमेंट प्लान डिसाइड कर लेंगे कि किस किस गुड्स, कितना क्वांटिटी गुड्स को हम प्रोक्योर करेंगे जो पब्लिक नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दीज रूल्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर may by order in writing impose restrictions including prior registration। so department of expenditure ये कुछ restrictions है, चाहे हम जैसे सपोज नेशनल सिक्योरिटी है कि कोई डिफेंस रिलेटेड डिफेंस गुड्स है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बहुत ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड में, जैसे कुछ सेंसिटिव चीज होता है बेसिकली रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी की, रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस गुड्स। तो वो रेस्ट्रिक्शंस को हम सरपास नहीं करेंगे, वो रेस्ट्रिक्शंस को हम वायोलेट नहीं करेंगे। जो प्रोक्योरिंग एंटिटी, गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी, उसको वायोलेट नहीं करेगा। और इसमें वही दे दिया, ठीक है। बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी जो है कि सपोज उसमें सपोज हम बाहर कंट्री से ग्लोबल टेंडर से हम गुड प्रोक्योर करेंगे और उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा, और वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो रेस्ट्रिक्शंस को बेसिकली डिस्क्लोज करता है, तो वो उसको हम वायोलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो रूल 144 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जाएगा, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो वायोलेट नहीं होगा। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वायोलेट होता है जब हम गुड प्रोक्योर करेंगे, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वायोलेट होता है तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो फेयर नहीं है। ओके, वहां पर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन होगा, वहां पर एफिशिएंसी के ऊपर ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, चलो रूल 145 को चलेंगे। यहां पर अथॉरिटीज के ऊपर दे दिया। अथॉरिटीज क्या है, जो अथॉरिटी को फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर दे दिया गया है, फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर जिसके पास है, द अथॉरिटी हु पजेस फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर एंड हु हैज पावर टू परचेज द कमोडिटी एंड मेक एक्सपेंडिचर, जिसके पास पावर है वो एक्सपेंडिचर का पावर है, और जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है वो एक्चुअली अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके के गुड्स को प्रोक्योर करेंगे रीजनेबल प्राइस में, और क्वालिटी मेंटेन होगा, और स्पेसिफिकेशंस अच्छा होगा, और जिस फार्म को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, और उसका जो पोस्ट सेल सर्विस अच्छा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी अच्छा है, उसका जो फाइनेंशियल बेसिकली स्ट्रेंथ है वो स्टेबल है। तो ये सब बेसिकली जो अथॉरिटी मेन है, अथॉरिटी बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो द मेन जो पावर होता है अथॉरिटी के पास, उसके पास पावर है कि वो एक्सपेंडिचर करेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अथॉरिटी व्हिच इज कॉम्पिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर may sanction the purchase of goods required for use in public service in accordance with provisions in the delegation of financial power rules following the general procedure contained in the following rules। तो वही है, जिस अथॉरिटी के पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर रहेगा और जिसके पास पावर रहेगा वो एक्सपेंडिचर कर सकता है, और जिसके पास पावर है वो गुड को प्रोक्योर कर सकता है। तो वो इस रूल में मेंशन किया गया है, अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। रूल 145 बहुत ही रूल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है,
रूल 144 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गया, रूल 145 अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया। यहां पर अथॉरिटी मींस जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, जो गुड को वो प्रोक्योर करेगा और उसके पास एक्सपेंडिचर पावर है। ठीक है। रूल 146 जो है मोबिलाइजेशन के ऊपर है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। जो गुड्स मोबिलाइज होता है, मोबिलाइजेशन क्या है, सपोज कुछ ऐसे सपोज प्रेसिडेंटल रूल लग गया कि कुछ मिलिट्री रूल लग गया, उसमें एक्चुअली सम रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा रिलेटेड टू द मोबिलाइजेशन ऑफ गुड्स। तो वही है, तो बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशंस, तो उसमें स्पेशल रूल आ जाएगा, सम रेस्ट्रिक्शंस would be there related to the shifting of goods, switch over of goods from one place to another, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अदरवाइज नॉर्मली गुड्स मोबिलाइज हो सकता है कंट्री के अंदर, वन स्टेट टू अनदर कंट्री, की विद इन स्टेट्स, की विद इन सपोज नेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसा कुछ मिलिट्री ऑपरेशन आ जाता है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है मूवमेंट रिलेटेड में, और उसको मानना है। तो ये जो है रूल 146 वो मोबिलाइजेशन के ऊपर है। 147 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बढ़िया बात बताया है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। पावर्स इसमें रूल 147 ये बोल दिया कि जेम में जो गुड्स है, जेम में जो सर्विसेज है, इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू प्रोक्योर कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन जेम पोर्टल। जेम पोर्टल में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो मैंडेटरी है, गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैंडेटरीली जेम से खरीदेंगे। सपोज जेम में नहीं है, हमको जो गुड चाहिए वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में नहीं है, तब हम आउटसाइड को चलेंगे, तब हम खुद सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करेंगे, और लिमिटेड टेंडर है कि सपोज एडवर्टाइज टेंडर है कि ओपन टेंडर इंक्वायरी है कि बिडिंग सिस्टम में हम जाएंगे। मगर जेम में जो गुड है कंपल्सरीली जेम से ही खरीदना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स आर अवेलेबल ऑन द जेम एंड यू वांट टू परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड, देन यू वायोलेट द रूल। देन इन दिस केस एक्चुअली वो आपको इट मींस ऑडिट जो पर्सनल्स को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत देर जो कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम एंड इट मस्ट बी मैंडेटरीली प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये बहुत देखिए रेड में दे दिया, कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज ओके अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटरीली थ्रू जेम एज पर रूल 149। तो 149 जो है जेम के ऊपर है, अभी डिस्कस करेंगे, उसका लिमिट है। मगर 147 जो पावर्स फॉर प्रोक्योरमेंट, पावर मींस ए पावर है, जेम में गुड्स है, और वो यदि आपको जो गुड चाहिए, बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटी को जो गुड चाहिए वो जेम में है, और कंपल्सरीली और मैंडेटरीली द गवर्नमेंट एंटिटी प्रोक्योर दिस गुड फ्रॉम द जेम। The government entity cannot procure the good from outside because that good is available in GEM। ठीक है, 148 डिलीट कर दिया गया रूल 148 को। अभी हम 149 को चलेंगे, ये जेम के ऊपर डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जनरल फाइनेंशियल रूल 149 है उसमें क्लियरली मेंशन है। ओके, तो अभी जेम एसपी भी एक है, जेम एसपी भी इसमें देखिए स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी, जेम स्पेशल पर्पज व्हीकल, ये एक लिमिटेड कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने ऑटोनोमस पावर दिया है, और पूरा जेम पोर्टल एक्चुअली ऑब्जर्व बाय द जेम एसपीवी। ये एक लिमिटेड कंपनी है, उसको गवर्नमेंट ऑटोनोमस पावर दिया है, और वो जो भी सप्लायर्स रहेंगे उसका क्रीडेंशियल्स को चेक करेगा। जिसको जेम पोर्टल में जो भी सप्लायर्स है उसका क्रीडेंशियल को जेम एसपीवी चेक करेगा, पीरियोडिकली एडवर्टाइज करेगा कि ये गुड जेम में अवेलेबल है। तो अभी जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको जेम से ही खरीदना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में वेराइटीज ऑफ गुड्स है, तो ये एडवर्टाइज पीरियोडिकली एडवर्टाइज कौन करेगा? जेम एसपीवी। सप्लायर्स का क्रीडेंशियल को चेक कौन करेगा? जेम एसपीवी। सप्लायर्स को इनवाइट करके उनको रजिस्टर्ड कौन करेगा? जेम एसपीवी। ठीक है, तो वो जेम स्पेशल पर्पज व्हीकल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो विल एंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी including periodic advertisement of the items to be procured through GEM for the prospective suppliers। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, the procurement of goods and services by ministries or departments will be mandatory for goods and services available on GEM। सेम चीज बता दिया
कि जो जेम में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, और कोई गवर्नमेंट एंटिटी को कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो गुड चाहिए और वो जेम पोर्टल में है, तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, द कंसर्न गवर्नमेंट एंटिटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोक्योर दैट कमोडिटी फ्रॉम द जेम. Credentials of suppliers on GEM shall be certified. Credentials means suppose उसका जो पास्ट सेल सर्विस है कि पोस्ट सेल सर्विस सब आपको देने के बाद उसका जो वारंटी गारंटी पीरियड है, उसका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, कि बेसिकली जो जो गवर्नमेंट एजेंसीज को कि गवर्नमेंट एंटिटीज को वो ऑलरेडी गुड्स ऑलरेडी सेल कर चुका है, उनके साथ क्या लिंक है, कितना वो ऑनेस्टी है, कितना इंटीग्रिटी है, तो ये सब चीज आ जाता है क्रीडेंशियल्स में. और जेएमएसपी भी चेक करेगा वो सप्लायर्स का, और सब चेक करने के बाद यदि क्रीडेंशियल्स अच्छा है उनको अलाउ करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए. द प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स. तो बेसिकली हम देखेंगे जेम पोर्टल से जब खरीदेंगे वेराइटीज, पर्टिकुलर कमोडिटी का डिफरेंट ब्रांड्स होता है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होता है, so many farms, so many companies are there, they are selling the particular commodity, उनका स्पेसिफिकेशंस को चेक करना है और एक एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद जो रीजनेबल प्राइस होगा, जो भी फार्म रीजनेबल प्राइस में दे रहा है और उसका स्पेसिफिकेशन अच्छा है और उसका जो कमोडिटी है उसका क्वालिटी है और उसका अदर क्रीडेंशियल्स को हम चेक करेंगे, तब हम फाइनली उससे ही उसी फार्म से खरीदेंगे. तो यहाँ पर लिमिट है, देखिए, तो अप टू ₹25,000 ऐसा कोई कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो, वो कमोडिटी जेम पोर्टल में है और उसका जो प्राइस है अप टू ₹25,000, तो जेम से कोई भी सप्लायर से हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, ओके, थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स. जो भी जेम में जो अवेलेबल सप्लायर्स है और पर्टिकुलर कमोडिटी को वो ऑफर कर रहे हैं, उनसे हम खरीद सकते हैं. मगर यहां पर जो लिमिट है अप टू ₹25,000 the government entity की government department can procure the commodity from any seller, okay, available on the GEM. हम क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डिलीवरी पीरियड तो सब चेक करेंगे. तो चेक करने के बाद कोई भी अवेलेबल सप्लायर, जिस सप्लायर का हम स्पेसिफिकेशन अच्छा लगेगा और उसका जो ठीक टाइमली वो गुड हमको इट मींस डिलीवर करेगा और उसका क्वालिटी अच्छा है और रीजनेबल प्राइस में दे रहा है, ये सब देख के हम वो सप्लायर से हम वो गुड को प्रोक्योर करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है नोट है, मगर ये जो लिमिट है ऑटोमोबाइल्स के लिए, कोई ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स के लिए ये ऐसा कुछ सेलिंग लिमिट नहीं है, मगर आपको याद रखना है जो फर्स्ट है अप टू ₹25,000 द गवर्नमेंट एंटिटी कैन प्रोक्योर द कमोडिटी फ्रॉम एनी सेलर्स अवेलेबल ऑन द जेम, बट वी मस्ट चेक द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की डिलीवरी स्टेटस, ये सब चेक करके हमको परचेज करना है. मगर ये जो लिमिट है अप टू ₹25,000, ये ऑटोमोबाइल्स कमोडिटी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा. और एक लिमिट आ गया अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख. इस लिमिट में ये जो लिमिट यदि आ जाता है, हम एटलीस्ट 3 सेलर्स, यहां पर कंपैरिजन आ जाता है, L1 बाइंग बोलते हैं, यहां पर कंपैरिजन आ जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप इसी लिमिट के अंदर कमोडिटी को प्रोक्योर करना चाहते हो विद इट मींस अबव ₹25,000, 25,000 से ज्यादा है एंड अप टू 5 लाख, ओके, यदि करना चाहते हो तो कंपैरिजन को जाएंगे. एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, एटलीस्ट मिनिमम 3 मैन्युफैक्चरर्स, मिनिमम आपको यहां पर कंपैरिजन आएगा. हम कंपेयर करेंगे एटलीस्ट 3 से ज्यादा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनका इट मींस स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करेंगे, उनका प्राइस को कंपेयर करेंगे, उनका क्रीडेंशियल्स चेक करेंगे, ओके, उनका क्या क्या चेक करेंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे, उनका क्वालिटी को चेक करेंगे, जो सप्लायर्स का बेसिकली पास्ट सेल सर्विस है कि पोस्ट सेल सर्विस है, कि प्रोडक्ट का जो इट मींस टेक्निकल पार्ट है, और ड्यूरेबिलिटी को देखेंगे, ठीक है, और डिलीवरी कैसे वो डिलीवरी करता है, और वो पहले सपोज उसको डेवेयर सपोज कर दिया होगा, सपोज डेवेयर कर रेड मार्क आएगा तो हम उससे प्रोक्योर नहीं करेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी डेवेयर कर दिया गया है,
कि कोई वो एजेंसी के कोई गवर्नमेंट एंटिटी के साथ वो चीटिंग किया है, वो ठीक टाइम में डिलीवरी नहीं किया है, तो ये सब चीज है। तो यहां पर कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन एटलीस्ट ये क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को हम लेंगे कि इसमें L1 बाइंग मेन है, इसमें कंपेयर करके जिसका प्राइस लोएस्ट होगा, कंपैरिजन रहेगा, जिसका प्राइस लोएस्ट होगा उसी से ही हम प्रोक्योर करेंगे। ठीक है। यहां पर भी ये अप टू लेस देन ये भी है, लेस देन ₹5 लाख है, हम ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। मगर कॉमन चीज है, आपको याद रखना है अबोव ₹25,000 एंड बिल इट मींस अप टू 5 लाख, अबोव ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख यदि जो गुड हम प्रोक्योर करना चाहते हैं उसका वैल्यू है, तब हम एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स को कंपेयर करेंगे, उसका प्राइस, उसका स्पेसिफिकेशन, ये सब कंपेयर करेंगे और अल्टीमेटली L1 मींस जो भी कम प्राइस में देगा उससे हम खरीदेंगे। और ये लेस देन ₹5 लाख, क्या हम ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं कि हम रिवर्स ऑक्शन टूल को जा सकते हैं? जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मगर यहां पर जो थर्ड पार्ट है, यदि जो कमोडिटी आप प्रोक्योर करना चाहते हो उसका वैल्यू हो गया अबव ₹5 लाख, तो अबव ₹5 लाख मींस कंपल्सरी आपको ऑनलाइन बिडिंग जाना है और रिवर्स ऑक्शन को जाना है, कंपल्सरी यहां पर जाना ही जाना है, रिवर्स ऑक्शन टूल को जाना है और ऑनलाइन बिडिंग जाना है। मगर उस केस में जो था अबव ₹25,000 अप टू 5 लाख, क्या लेस देन 5 लाख है, क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल कर सकते हैं। मगर जब यहां पर अबव ₹5 लाख होगा, यहां पर हम कंपैरिजन को नहीं जाएंगे, अबव ₹5 लाख मींस हम ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को जाएंगे, इसको याद रखना है। और ऑनलाइन बिडिंग रिवर्स ऑक्शन में हम वही देखेंगे, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड, इसको चेक करेंगे, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता है। चाहे ऑनलाइन बिडिंग में जब होता है रिवर्स ऑक्शन टूल को हम जब जाएंगे, क्या चेक करेंगे? जो ऑनलाइन बिड में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, तो ऑनलाइन बिडिंग एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक रियल टाइम होता है, ओके, तो वहां पर हम क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड को देखेंगे। और मेरा स्पेशली जेम के ऊपर वीडियो पड़ा है, तो आपको मालूम हो जाएगा रिवर्स ऑक्शन टूल, वहां पर आप देख लीजिए, जेम के ऊपर पड़ा है। मगर यहां पर जो लिमिट है, जो ऑटोमोबाइल्स नहीं है, एक्सक्लूडिंग अबव ₹5 लाख तो दे दिया, मगर एक्सक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, जहां पर अभी करेंट लिमिट है 30 लाख, विल कंटिन्यू। ठीक है। तो ये 3 चीज है, अप टू ₹25,000 कोई भी सप्लायर से आप खरीद सकते हो जेम पोर्टल से, मगर जब अबव ₹25,000 एंड अप टू 5 लाख, एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स, उनका स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, डिलीवरी पीरियड को कंपेयर करेंगे। और मेन थिंग है, जो रीजनेबल माने कम प्राइस में देगा, जो लीस्ट प्राइस में देगा, उससे हम प्रोक्योर करेंगे। और उसमें भी हम लेस देन 5 लाख ऑनलाइन बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन को जा सकते हैं, मगर अबव ₹5 लाख कंपल्सरी ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन। ठीक है। और इसमें जो ये जो लिमिट है, इसमें ऑटोमोबाइल्स को एक्सक्लूड कर दी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर लिमिट है वो 30 लाख, ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। और कुछ प्रोसीजर देख लेंगे। द इन्वाइटेशन फॉर द ऑनलाइन ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन विल बी, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा जो भी सप्लायर्स रजिस्टर्ड ऑलरेडी है जेम पोर्टल में, और जो न्यू सप्लायर्स वो अभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अभी वो आकर ज्वाइन कर रहे हैं जेम पोर्टल में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो ऑनलाइन ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन में, ऑल द एग्जिस्टिंग सेलर्स or other sellers registered on the portal and who have offered their goods or services under the particular product or service category as per terms and conditions of JAME. Next one, the above mentioned monetary, ये जो above, ये only JAME पोर्टल में, अदर आउटसाइड में सपोज JAME पोर्टल में कुछ गुड्स नहीं है, कुछ सर्विसेज नहीं है, तो वहां पर गवर्नमेंट एंटिटी क्या करेगा? वो बिडिंग इनवाइट करेगा आउटसाइड से। तो यहां पर जो है ये जो लिमिट हम डिस्कस किए ना, वो ओनली जेम पोर्टल के लिए। सपोज कोई पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं है जेम पोर्टल में, तो हम आउटसाइड बिडिंग में जाएंगे, जैसे लिमिटेड टेंडर है, कि चाहे वो एडवर्टाइज टेंडर है, कि 2 स्टेज बिडिंग है, कि 2 बिड सिस्टम है, वो आउटसाइड में जाएंगे, उसके लिए अलग रूल है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और यहां पर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the ministry or department shall work out their procurement requirements of goods and services, and either OPEX means operational expenditure, operational OPEX means day to day expenditure, और CAPEX means capital expenditure। तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर डे टू डे गुड्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो असेट्स हम खरीदेंगे, दिस टाइप ऑफ असेट्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम। तो हमारा 2 प्रकार, एक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
तो ये जो है एक बजट एस्टिमेट होगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो रिक्वायरमेंट और सुइटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स एंड शैल प्रोजेक्ट देयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन जेम पोर्टल विद इन 30 days ऑफ बजट अप्रूवल। जिस डेट में बजट अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ आपको इतना बजट मिलेगा, ओके, गवर्नमेंट एंटिटी को पता चल गया कि बजट अप्रूवल हो गया, हम जितना बजट इट मींस डिमांड किया था वो बजट को गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया, और जिस डेट में बजट अप्रूवल हो जाएगा उसका 30 डेज के अंदर प्रोक्योरमेंट प्लान होना चाहिए। कैसे, क्या क्या गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे, क्या क्या सर्विसेज हमको अवेल करना है जेम पोर्टल से, इसको आपको डिसाइड करना है। तो आपको समझ में आ गया। तो बजट अप्रूवल हो गया जिस डेट में, उसका 30 डेज के अंदर जेम पोर्टल से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम जो भी गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे, जो भी सर्विसेज हम अवेल करेंगे, उसका प्रोक्योरमेंट प्लान इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ द बजट अप्रूवल। ये भी क्वेश्चन आता है। और एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है, यहां पर दे दिया, देखिए बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स क्या है। जैसे इस टूल में हम डिटेक्ट करेंगे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यही पर्टिकुलर कमोडिटी को हम परचेज किए थे, उसका प्राइस क्या था, जेम पोर्टल से किस प्राइस में हम परचेज किए थे। तो इसको बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स क्यों देखेंगे ना, क्योंकि अभी सेम कमोडिटी को सपोज एक आरओ हम अभी खरीदेंगे, तो वो 2023-24 में वो आरओ जो हम खरीदे थे और पर्टिकुलर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को देखकर ये प्राइस था। अभी उसी तरीके का आरओ को हम 2024-25 में खरीदेंगे, उसका प्राइस क्या है। तो ये जो पास्ट प्राइस जो है हमको ये बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है जो ये डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज। जो हमारा डिमांड है वो स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीस मील परचेज। ये नहीं होना चाहिए, पीस मील परचेज होना चाहिए। हमको देख लिया कि इतना क्वांटिटी चाहिए हमको, सपोज हमको अभी 100 यूनिट्स चाहिए, हम पूरा 100 यूनिट्स खरीदेंगे, उसको पीस मील नहीं करेंगे, अरे पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था 149 जेम के ऊपर था। अभी थोड़ा रजिस्ट्रेशन, ये जो रूल है लास्ट है, फिर हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रूल 150, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल को याद रखना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जेम में अवेलेबल नहीं है, तब यहां पर क्या है, हम इट मींस बीड इनवाइट करेंगे। तो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में आल्सो रजिस्टर सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर स्पेशली रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिस पीरियडिकली। तो यदि जेम में पर्टिकुलर कमोडिटी जेम में नहीं है तो अभी हम बाहर से खरीदेंगे, इसके लिए क्या है, सप्लायर्स को हम रजिस्टर करेंगे। ओके, सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करके उनसे हम गुड को प्रोक्योर करेंगे। सो ये जो रजिस्ट्रेशन हम सप्लायर को रजिस्टर्ड करेंगे वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए। जो भी सप्लायर्स को हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें जो प्रोसीजर होना चाहिए वो बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आफ्टर गिविंग ड्यू पब्लिसिटी। और पब्लिसिटी भी होना चाहिए कि अभी हम ये पर्टिकुलर गुड जेम पोर्टल में नहीं है, अभी हम ये गुड को बीड इनवाइट करेंगे और हमको सप्लायर्स चाहिए, तो अभी हम सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो वो हमारा जो गवर्नमेंट एंटिटी का जो वेबसाइट है कि उसका जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसमें पब्लिश किया जाएगा, पब्लिश होगा। ओके, तब हम सप्लायर्स की, हमको इस तरीके का सप्लायर्स चाहिए। ओके, जिस सप्लायर का क्रेडेंशियल अच्छा है, डिलीवरी स्टेटस अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ठीक है, पोस्ट सेल सर्विस ठीक है, कि पास्ट सर्विस ठीक है। ठीक है, ये सब देखकर हम पूरा पब्लिसिटी करेंगे उसको गवर्नमेंट एंटिटी उसका साइट में, वेबसाइट में, और जो उसका ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। ओके, फिर सपोज वो जो कमोडिटी अभी जेम में नहीं था, तो अभी हम क्या किए कि प्रोक्योरिंग जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो सप्लायर्स को रजिस्टर किया और प्रोक्योर किया। जब ये हो गया कि जब अभी वो गुड अभी जेम में उपलब्ध होने वाला है, जो सप्लायर्स को हम रजिस्टर किया है, ओके, हमारा एंटिटी में हम उसको रजिस्टर किया है, कि हमारा डिपार्टमेंट में उसको रजिस्टर किया है, फिर उसको भी मौका मिलेगा, वो जाकर जेम पोर्टल में उसका भी रजिस्टर्ड होगा और वो गुड को ऑफर करेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब आप सपोज सप्लायर्स को रजिस्टर कर रहे हो, जेम पोर्टल में कमोडिटी नहीं है, तो आप अभी बीड इनवाइट करोगे, इसके लिए आपको सप्लायर्स चाहिए। सो आपका डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एंटिटी है, वो क्या करेगा, सप्लायर्स को रजिस्टर करेगा। तो वो पब्लिसिटी होगा, बेसिकली आपका वेबसाइट में आप क्लियरली मेंशन करोगे कि इस तरीके का हमको सप्लायर्स चाहिए और ये गुड हम प्रोक्योर करेंगे, ठीक है। और उसका जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसमें भी पब्लिश होगा। तो क्रीडेंशियल्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, पास्ट परफॉर्मेंस है, आफ्टर सेल सर्विस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये हम चेक करके सप्लायर को रजिस्टर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किस तरीके का सप्लायर्स को हम रजिस्टर करेंगे। सपोज हम आउटसाइड जेम से हम अभी गुड्स प्रोक्योर करेंगे, तो अभी हम सप्लायर्स को रजिस्टर करेंगे, क्या कंडीशन है, तो यही है। तो जो सप्लायर को हम रजिस्टर करेंगे उसका क्रीडेंशियल्स को चेक करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को चेक करेंगे, उसका पास्ट सेल सर्विस को चेक करेंगे, उसका पोस्ट सेल सर्विस जो वारंटी गारंटी पीरियड है उसको भी चेक करेंगे, ठीक है, और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करेंगे, और जो पास्ट में जो वो गुड्स ऑफर किया है उसमें कितना इंटीग्रिटी, कितना ऑनेस्टी वो मेंटेन किया है, क्या वो टाइमली डिलीवरी कर पाएगा कि नहीं। तो ये सब चीज को हम चेक करके उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड। अच्छा, कितना पीरियड के लिए सप्लायर्स को रजिस्टर करेंगे, बेसिकली फिक्स्ड पीरियड बिटवीन 1 to 3 years, मगर नेचर ऑफ द कमोडिटी, हम गुड्स जो है ना, कमोडिटी का नेचर क्या है, तो उसको देखकर हम उसको रजिस्टर करेंगे, मगर फिक्स्ड जो पीरियड रहेगा बिटवीन 1 to 3 years। उसमें 1 year हो सकता है, 2 year हो सकता है, 3 years हो सकता है, मगर हम मेनली एम्फासाइज करेंगे नेचर ऑफ द गुड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इसमें आता है, जो फिक्स्ड पीरियड होता है 1 to 3 years, तो इसमें मैक्सिमम 3 years, चाहे आप 1 year, सपोज एक कमोडिटी के लिए आप एक सप्लायर को रजिस्टर किया 1 year के बाद क्या होगा, वो फिर फ्रेश रिन्यू होगा कि 2 years के लिए, क्या 2 years के बाद उसका फ्रेश रिन्यू होगा, क्या वो कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कि आप 3 years के लिए उसको रजिस्टर कर दिए, 3 years के बाद फिर उसका फ्रेश रिन्यू होगा, और आप चेक करोगे क्या ये सब जो है मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की, डिलीवरी स्टेटस की, पास्ट सर्विसेज को फिर चेक करके उसको रिन्यू करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। न्यू सप्लायर्स को आप ज्वाइन करा सकते हो कोई भी टाइम में। और नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ऑफ एवरी रजिस्टर्ड सप्लायर इज टू बी वॉच्ड। तो आपको वॉच करना है, जो भी सप्लायर को आप रजिस्टर किया है उसका परफॉर्मेंस को, उसका कंडक्ट को आपको चेक करना है। जो भी गुड वो ऑफर कर रहा है, ऐसा कुछ गुड्स वो ऑफर कर रहा है जो हार्मफुल हो सकता है पब्लिक के लिए, ओके, कि बेसिकली एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, ये सब चीज की प्रॉपर्टी को भी रुइन कर सकता है, तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है। तो यदि आपको लगता है उनका कंडक्ट आप ठीक नहीं लग रहा है, कि उनका परफॉर्मेंस में आपको डाउट लग रहा है, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। द रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर लायबल टू बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द अप्रूव्ड सप्लायर्स। जब उनका सपोज कुछ मिसकंडक्ट आप डिटेक्ट करोगे कि ऐसा कुछ कमोडिटी वो ऑफर कर रहा है जो अगेंस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, की एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, की इट मीन्स सपोज द सप्लायर बेसिकली डज नॉट अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बिडिंग, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमारा बिडिंग में था वो उसको वायोलेट कर रहा है, सब स्टैंडर्ड गुड्स दे रहा है, इंफीरियर गुड्स दे रहा है, और जो डिलीवर कर रहा है वो डिले करके दे रहा है, टाइमली नहीं दे रहा है, तो ये सब हो गया ना, ये सब मिसकंडक्ट है। और परफॉर्मेंस में कुछ शॉर्टकमिंग्स हम डिटेक्ट किया तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो कंडीशन है, किस कंडीशन में हम उनको रिमूव करेंगे सप्लायर्स को। अभी तो हम रजिस्टर्ड कर दिया है, मगर किस कंडीशन में हम रिमूव करेंगे, मेनली इफ दे फेल टू अबाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस। जब रजिस्ट्रेशन हुआ था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस था जो गवर्नमेंट एंटिटी का, उसको वो वायोलेट कर रहा है, उसको अबाइड नहीं कर रहा है, और सबस्टैंडर्ड गुड्स वो डिलीवर कर रहा है, जो गुड दे रहा है वो सबस्टैंडर्ड है, इंफीरियर क्वालिटी है, और कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी। आपको अभी हमको पता चला कि पास्ट में कोई गवर्नमेंट एजेंसी की गवर्नमेंट एंटिटी से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन दिया था, ये भी हमको मालूम आ गया। और अभी जो वो जिस ग्राउंड में अभी गुड ऑफर कर रहा है वो अगेंस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये, और यहां पर देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ये कब हम रिमूव करेंगे, जब वो सबस्टैंडर्ड कमोडिटी बेसिकली सप्लाई करेगा, इंफीरियर कमोडिटी। और क्या है, जो रजिस्ट्रेशन के समय जो टर्म्स एंड कंडीशंस था वो उसको अवॉइड ठीक से नहीं कर रहा है, उसको वायोलेट कर रहा है। और हमको पता चल गया नाउ द गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट एंटिटी has detected that the particular firm actually made false declaration to any government agency in the past, कि अभी ऐसा कुछ ओपिनियन है गवर्नमेंट का जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इस केस में हम इमीडिएटली वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर को रिमूव करेंगे, ठीक है। और जो भी हम सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करेंगे तब क्या होगा ना, जो प्रोक्योरिंग एंटिटी का वेबसाइट है, वेबसाइट में क्लियरली मेंशन होगा कि ये सब रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और ये गुड वो सप्लाई करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी है। तो हमारा वेबसाइट में क्लियरली रहेगा, जो गवर्नमेंट एंटिटी है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो जो सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया है उनका पूरा नाम रहेगा और एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में भी पूरा नाम रहेगा, ठीक है। तो ये था आज मेरा जो डिस्कशन था रूल 142 टू 150। अभी हम थोड़ा देख लेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। मैं बोला था कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस मेरा, क्योंकि मेरा वीडियो जो होता है सभी समय एक्सप्लेनेशन विथ एमसीक्यूज। किस तरीके का क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न इज देयर नाउ इट इज, सो इजीली यू कैन गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच रूल ऑफ जीएफआर इट इज मेंशन्ड दैट कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटरीली थ्रू जेम। तो अभी एक आप देख लीजिए, ये था रूल 147 था, वो पावर के ऊपर था। आप देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन था कि जो कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज है जो जेम पोर्टल में है, गवर्नमेंट एंटिटी की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैंडेटरीली वो जेम पोर्टल से खरीदेंगे। सपोज वो जेम पोर्टल में गुड्स नहीं है तब हम आउटसाइड को जाएंगे, आउटसाइड इट मींस बिडिंग को जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है रूल 100 आंसर डी 147, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर दे दिया अकॉर्डिंग टू द जीएफआर 143, हम जानते हैं जो 143 है वो डेफिनेशन ऑफ गुड्स के ऊपर है। वो यहां पर क्वेश्चन दे दिया द टर्म गुड्स डज नॉट इंक्लूड। अच्छा, गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं है, मैं बार बार बताया था, बहुत इजी है, आपको याद रखना है लाइब्रेरी, गुड्स प्रोक्योर फॉर लाइब्रेरी, पीरियोडिकल्स प्रोक्योर फॉर लाइब्रेरी, कि कोई पब्लिकेशन प्रोक्योर फॉर लाइब्रेरी, वो गुड्स का डेफिनेशन में नहीं जाएगा, उधर सब कुछ जाएगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, इंश्योरेंस हो, इंस्टॉलेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ये सब चीज जाएगा। मगर बेसिकली आपको याद रखना है, मैं जो बताया, बुक्स प्रोक्योर फॉर लाइब्रेरी, पीरियोडिकल्स प्रोक्योर फॉर लाइब्रेरी, की पब्लिकेशंस फॉर लाइब्रेरी, ये गुड्स का डेफिनेशन में नहीं जाएगा। तो इंस्टॉलेशंस ये तो गुड्स में इंक्लूड है, कमीशनिंग, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ये इंक्लूड है, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी ये गुड्स में इंक्लूड नहीं है, मैं बार बार बताया। बुक्स फॉर लाइब्रेरी ये इंक्लूड नहीं है, और जो पैटेंट राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मींस जो पैटेंट राइट होता है ये इंक्लूड है। तो जो टिक लगाया ये गुड्स में इंक्लूड है, मगर बेसिकली जो क्रॉस लगाया ना, बेसिकली लाइब्रेरी जहां पर है, ठीक है, तो वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा। आंसर मिल गया 3 और 4, यहां पर दे दिया है कि जो गुड्स में इंक्लूड नहीं है 3 और 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। 4 स्टेटमेंट्स गिवन, यू सी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल शुड इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड। आप देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस किए थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल हम डिस्कस किए थे रूल 144 में। कुछ प्रिंसिपल्स था, जब गवर्नमेंट एंटिटी की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो गुड प्रोक्योर करेगा, कुछ प्रिंसिपल्स होता है, वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको वायोलेट नहीं करेगा, उसको वो डेविएट नहीं करेगा। उसमें क्लियरली मेंशन था, जब हम बीड इनवाइट करेंगे, बीड पेपर में ये मेंशन नहीं करेंगे कि इस तरीके का ट्रेडमार्क का गुड चाहिए, इस तरीके का ब्रांड का गुड चाहिए, नो। ओके, तो यहां पर दे दिया इनकरेक्ट, इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड, ये गलत है। इंडिकेट हम नहीं करेंगे कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, कि इस ट्रेडमार्क का प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में नहीं है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट में नहीं है, ये गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है।
The specifications in terms of quality, type, etc., as also quantity of goods to be procured should be clearly spelled out. ये तो ठीक है, जब हम बीड इनवाइट करेंगे उसमें क्लियरली मेंशन करेंगे कि किस तरीके का क्वालिटी गुड हमको चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, ये तो हम मेंशन करेंगे, क्लियरली स्पेल्ड आउट करेंगे, ये ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट में जाता है, ऑफर शुड बी इनवाइटेड फॉलोइंग ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। तो जब हम बीड इनवाइट करेंगे, वो जो प्रोसीजर होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, उसमें जो गाइडलाइंस है हम प्रॉपरली उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है, ये एक सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट में आ जाता है। ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शाल प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर एंड द सेम शुड आल्सो बी प्लेस्ड ऑन देयर वेबसाइट। ये इनकरेक्ट है, मैं बार बार बताया, सपोज आपको प्रोक्योर करना है, जो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान होगा वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, जैसे अभी आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो इसके पहले प्रायर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस ईयर द पर्टिकुलर कंसर्न गवर्नमेंट एंटिटी की कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट मेक द प्रोक्योरमेंट एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। तो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान मस्ट बी मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, मगर ये गलत है, आफ्टर द कमेंसमेंट दे दिया। तो अभी आपको दो रॉन्ग डिटेक्ट हो गया, 1 and 4। तो आप देखिए किस तरह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। तो आपको बहुत बारीकी से कुछ स्टेटमेंट को देखना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गलत हो गया कि जब हम बीड डॉक्यूमेंट इनवाइट करेंगे उसमें मेंशन नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, पर्टिकुलर ब्रांड का कमोडिटी चाहिए, नहीं है, ये कोई इंडिकेट हम नहीं करेंगे, मगर वहां पर दे दिया इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, तो ऐसा तो सब्जेक्ट मैटर में नहीं है। और एक है जो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान होगा वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, मगर ये आफ्टर दे दिया, तो ये गलत जो है 1 and 4 है। तो इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पैटर्न अभी जो चल रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट। मैं बार बार बताया था कि हम एक्सेस क्वांटिटी परचेज नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट एंटिटी वो देखेगा कि पब्लिक नीड के हिसाब से कितना क्वांटिटी को परचेज करना है, क्योंकि एक्सेस हो जाने से क्या होगा, हमको कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसको स्टॉक जो करेंगे, इसको बोलते हैं क्या है, जो इन्वेंटोरी कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, इन्वेंटोरी। क्योंकि इन्वेंटोरी स्टॉक में अभी बताया था, इन्वेंटोरी स्टॉक में क्या है, अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, आधा निर्माण हुआ है उसको स्टॉक करेंगे, बेचा नहीं गया अनसोल्ड है उसको स्टॉक करेंगे, पहले से रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखेंगे, ये इन्वेंटोरी। तो ये जो चीज को हम रखेंगे स्टॉक में, उसमें कैरिंग कॉस्ट होता है। तो हम कभी भी एक्सेस क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, कभी भी जो अथॉरिटी है कंसर्न गवर्नमेंट एंटिटी का, वो फास्ट को चेक करना है, एस्टिमेट करना है कि कितना क्वांटिटी एडिक्वेट होगा, कितना क्वांटिटी सफिशिएंट है, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदना है, क्योंकि खरीदने से कैरिंग कॉस्ट हो जाता है। तो वही है, एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू अवॉइड एक्सेस एक्सपेंडिचर नहीं है, टू रिड्यूस बर्डन ऑन पब्लिक एक्सचेकर ये नहीं है, टू अवॉइड इन्वेंटोरी कैरिंग कॉस्ट यही है, टू रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस ये नहीं है। तो हमको मेनली हम एक्सेस खरीदेंगे तो हमको इन्वेंटोरी कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करेंगे, इसलिए हम एक्सेस नहीं खरीदेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमको जो प्रिजर्वेशन कॉस्ट है, कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, हमको ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जेम पोर्टल के ऊपर एक लिमिट है, डैश थ्रू द सप्लायर हैविंग लोएस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्विसाइड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड आफ्टर mandatorily obtaining bids using ऑनलाइन बिडिंग रिवर्स ऑक्शन टूल। में बताया था मैंडेटरी, आपको ऑनलाइन बिडिंग जाना है और रिवर्स ऑक्शन टूल को जाना है। तो लिमिट क्या है, लिमिट में बार बार बताया था, अबोव 5 लाख, जब अबोव 5 लाख होगा, मैंडेटरीली दे दिया ना, ऐसा नहीं कि लेस देन 5 लाख भी हम ऑनलाइन बिडिंग जाएंगे और रिवर्स ऑक्शन को जाएंगे। और लेस देन 5 लाख जो मैं बताया था कि लिमिट था कि ग्रेटर देन 25,000 एंड अप टू 5 लाख एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स, कंपैरिजन है एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स, और हम कंपेयर करेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 3 लेना है, ज्यादा लेना है उसका कंपेयर करेंगे, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्टैंडर्ड की, डिलीवरी स्टेटस, ये सब चेक करेंगे। और जो लीस्ट प्राइस में देगा, L1 बाइंग, जो लीस्ट प्राइस में देगा उससे ही खरीदेंगे। मगर यहां पर दे दिया, जब आपको 5 लाख से मैंडेटरी है ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल को जाना है,
तो ऐसा नहीं है कि लेस देन 5 लाख होगा, फिर भी हम जा सकते हैं ऑनलाइन बिडिंग, और एटलीस्ट 3 जो है L1 बाइंग को हम जाएंगे, एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स, अदरवाइज हम ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को भी जा सकते हैं। मगर अबव 5 लाख मीन्स हमको कंपल्सरी मैंडेटोरीली ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को जाना है। और इस केस में और एक दिया है, मगर ये ऑन जेम एक्सक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, ये मैं बोला था वेयर करंट लिमिट ऑफ 30 लाख विल कंटिन्यू, मगर ऑटोमोबाइल्स के लिए अभी भी 30 लाख कंटिन्यू है। तो ये मेन है, आंसर अभी मिल गया, ऑप्शन ए। आप देख लीजिए रूल 149 जो है वो क्लियरली मेंशन किया है, नहीं कि वो जेम के ऊपर है, और उसका जो थर्ड लिमिट है अबव 5 लाख मींस मैंडेटोरी ऑनलाइन बिडिंग, मैंडेटोरी ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को जाएंगे, मगर वो ऑटोमोबाइल्स के लिए वो लिमिट लागू नहीं होगा, और लिमिट ऑटोमोबाइल्स के लिए 30 लाख है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अवेलेबल ऑन जेम, मैं बोला था यदि जेम में अवेलेबल नहीं है तो हम आउटसाइड बिडिंग में जाएंगे। हेड ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट may also register suppliers of goods and services which are specifically required by the department or office periodically for a fixed period between 1 to 3 years में बोला था, ये ठीक है। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करना है, करेक्ट, तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो गुड्स एक्चुअली जेम पोर्टल में नहीं है तो हम आउटसाइड में जाएंगे, चाहे हम कोटेशन में जाएंगे कि सपोज लिमिटेड टेंडर की एडवर्टाइज टेंडर की 2 स्टेज बिडिंग टू 2 बेड सिस्टम की ओपन टेंडर, ये समझ आएंगे। तो इसके लिए हम सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और सप्लायर्स को जो रजिस्टर्ड करेंगे फिक्स्ड पीरियड होता है 1 to 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा, 1 to 3 ईयर्स। और 1 to 3 ईयर्स जो होगा ना वो बेसिकली कैसे फिक्स होगा, वो नेचर ऑफ द गुड्स वही दिया है, फिक्स्ड पीरियड 1 to 3 ईयर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स, ये भी ठीक है, चाहे 1 ईयर है कि 2 ईयर्स है और 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद मैक्सिमम 3 ईयर्स जो हम सप्लायर को रजिस्टर करेंगे। तो ये जो होगा नेचर, हम नेचर देखेंगे, पर्टिकुलर कमोडिटी का नेचर देखकर हम सप्लायर को रजिस्टर करेंगे, और वो जो पीरियड सपोज 2 ईयर्स हम फिक्स कर दिया कमोडिटी का नेचर को देखकर, 2 ईयर्स के बाद फिर फ्रेश रिन्यू होगा, वो जो सप्लायर को हम रजिस्टर किया है उसका रिन्यू होगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर आंसर भी मिल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये रूल आप देख लीजिए, अभी मैं बताया था रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स रूल 150 देख लीजिए, GFR 150 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। द रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर लायबल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। मैं बताया था कब हम हमारा अभी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, गवर्नमेंट एंटिटी का रजिस्टर्ड सप्लायर्स है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, हम उनको कब रिमूव करेंगे। तो कुछ कंडीशन है, जब वो जो टर्म्स एंड रजिस्ट्रेशन का जो टर्म्स कंडीशंस है वो अबाइड नहीं करेंगे, ये ठीक है। फेल टू अबाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, कि फेल टू सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम, जो टाइमली डिलीवरी करना चाहिए टाइमली वो नहीं दे रहा है, और कुछ सबस्टैंडर्ड इंफीरियर गुड्स को वो ऑफर कर रहा है, दे रहा है, और एनी हमको डिटेक्ट हो गया कि कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दिया था वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी को पास्ट में, और ये भी ओपिनियन गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि वो अगेंस्ट अ पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो भी कंडीशंस में जो ग्राउंड्स में अभी गुड्स को ऑफर कर रहा है वो इट इज अगेंस्ट अ पब्लिक इंटरेस्ट। ये सभी कंडीशंस ट्रू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, आप रूल 150 में बोल चुका हूं, ऑन व्हिच कंडीशंस एक्चुअली द सप्लायर्स वुड बी रिमूव्ड, ओके, फ्रॉम द एक्चुअली द सप्लायर्स वुड बी डिवेड, सो किस कंडीशंस में उनको हम रिमूव कर देंगे, बेसिकली द सप्लायर्स वुड बी रिमूव्ड। तो ये कंडीशन है, सभी कंडीशन करेक्ट है, तो यहां पर आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 5 करेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 8, प्रोक्योरिंग एंटिटीज प्रोजेक्ट देयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन जेम पोर्टल विद इन डैश ऑफ बजट अप्रूवल। में बताया था यदि बजट अप्रूवल हो गया, हमारा एस्टिमेशन, हम इट मींस डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी वो उसका डिपार्टमेंट को मांगा था कि हमको इतना बजट चाहिए, और बजट अप्रूवल हो गया। बजट अप्रूवल जब हो जाता है, जिस डेट में बजट अप्रूवल होता है उसका 30 डेज के अंदर हमको प्रोक्योरमेंट प्लान करना है, कि प्रोक्योरमेंट प्लान मींस इसी से टाइम में हम क्या करेंगे ना, जेम से खरीदेंगे इसी गुड्स को। तो विद इन 30 डेज, जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब हमारा बजट अप्रूवल हो जाता है उसका 30 डेज के अंदर हम प्रोक्योरमेंट प्लान करेंगे जो हम जेम से प्रोक्योर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the government buyers may ascertain the reasonableness of prices before placement of order using the dash available on GEM, including the last purchase price on GEM कि डिपार्टमेंट्स ओन लास्ट परचेज प्राइस। मैं बताया था आपको एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है, एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जिसमें हम क्या करेंगे, जब हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, सपोज 2024-25 में हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो हम पहले हम क्या करेंगे, जो उसका 2000 वही कमोडिटी का 2023-24 में क्या प्राइस था, तो उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो वो हम बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स में देखेंगे कि वही सेम कमोडिटी हम अभी 2024-25 में प्रोक्योर करेंगे और अभी ये प्राइस दिखा रहा है, मगर वो वही सेम कमोडिटी, उसका सेम स्पेसिफिकेशन, सेम क्वालिटी वो 2023-24 में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हम खरीदे थे, तो उसका प्राइस क्या था। तो हमको ये कहां से पता चलेगा, बिजनेस एनालिटिक्स टूल में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहां पर दे दिया, अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 लाख थ्रू द जेम पोर्ट सेलर हैविंग लोएस्ट प्राइस अमंग्स द अवेलेबल सेलर्स ऑफ डैश डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑन जेम। तो मैं बताया था कि ग्रेटर देन 25,000 आप जो गुड्स को प्रोक्योर करना चाहते हो उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगा ग्रेटर देन 25,000 एंड अप टू 5 लाख। तो जब ये कंडीशन में क्या है, हम एटलीस्ट थ्री सप्लायर्स को हम देखेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 3, और कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या है, उनका क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी स्टेटस, अदर जो क्रेडेंशियल्स के कंपेयर करेंगे। मगर मेन चीज है इसको L1 जो कम प्राइस में देगा, लीस्ट प्राइस में देगा, उससे हम प्रोक्योर करेंगे। तो एटलीस्ट मिनिमम 3 मैन्युफैक्चरर्स को हम डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो एटलीस्ट 3, एटमोस्ट 4 है, एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 3 है, एटमोस्ट 3 है, तो एटलीस्ट 3। तो ये 10 क्वेश्चंस था। तो आज मैं डिस्कस किया 100 रूल 142 to 150 रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel and like my channel so that you can get more and more benefit. Also this part also it means in my video actually in what way I'm discussing also it would be useful for you for descriptive examination also. Descriptive examination also it would be useful one. So आज इतना ही है. Thank you and namaskar to all of you.